तो लोकसभा की कार्रवाई स्थगित, हंगामे के चलते जानकारी फिलहाल मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। विपक्ष का हंगामा और इस बीच हंगामे के चलते कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। हंगामे के चलते कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में विपक्ष का हंगामा और हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। फिलहाल जानकारी अभी लोकसभा को लेकर मिल रही है। राज्यसभा में शायद कार्रवाई अभी जारी है, लेकिन हंगामे के चलते कार्रवाई स्थगित कर दी गई लोकसभा की। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, the Honorable Minister of Railways, the officers on the staff of the Ministry of Railways, Indian Railways, and all the scientists, engineers, technicians, and others whose dedication and hard work have made this pioneering venture a big success. I am confident that this achievement will further strengthen India's journey towards sustainable green mobility and alternative green energy for betterment of humanity. Let me complete all this. I am coming back to you. I am telling I am coming back to you. Papers to be laid on the table. Shriman Nityanand Rai. सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यावली के मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभापटल पर रखता हूँ। श्रीमान पीएल वर्मा जी, आदरणीय सभापति महोदय, I am coming back to you. Please take your seat. Honorable, please take your seat. I am coming back to you. Please. आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्य सूची है श्रीमान पीएल वर्मा जी, अपने नाम के सम्मुख अंकित पत्र सभापति पर रखता हूँ। श्रीमान बंडी संजय कुमार जी, मैं आज की पुनर्निश्चित कार्यसूची में क्रम संख्या 1C पर मेरे नाम के समूह के लिए दस्तावेज सभापति पर रखता हूँ। श्रीमान सुगंध मजुमदार जी, Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name as serial number D in today's revised list of business. श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी, Honorable Chairman sir, with your permission, I rise to lay papers mentioned against my name at serial number 1E of the revised list of business. Thank you. messages from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that Lok Sabha at its sitting held on 21st July 2026 adopted the following 3 motions recommending to the Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree: 1. To nominate 1 member from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts for the unexpired portion of the term of the committee, Vice Shri Sukhendu Shekhar Rai, resigned from Rajya Sabha with effect from 8th June 2026. 2. To nominate 1 member from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Undertakings for the unexpired portion of the term of the committee, Vice Shri Devashish Samant Rai, resigned from Rajya Sabha with effect from 25th May 2026. And 3. To elect 10 members amongst the members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Welfare of Other Backward Classes for the term of 1 year beginning from the date of the first sitting of the committee, and do communicate to the Lok Sabha the names of members so nominated or elected by the Rajya Sabha. Reports of the Public Accounts Committee, Shriman Akhilesh Prasad Singh ji. Versions of 48th, 49th, 50th and 51st reports of the Public Accounts Committee 2026-27 as listed against my name in today's list of business at serial number 2. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel, Shriman Anil Kumar Yadav Mandadi ji. Sir, I rise to lay on the table a copy each in Hindi and English of 24th, 25th and 26th reports of department related to Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel as listed against my name in today's list of business. Statement by Minister. Statement by Minister Professor S.P. Singh Baghel ji. सभापति महोदय, मैं आज राज्यसभा की संशोधित सूची में
क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के आगे प्रपत्र जो वक्तव्य है सूचीबद्ध वो सदन के पटल पर रखता हूं। इंदिरा गांधी ने तय किया, यही राहुल गांधी तय कर रहे हैं। मीडिया के लोगों के ऊपर अटैक, आज भी यदि मीडिया नहीं है तो देश में कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखाया जा सकता है। सरकार जो चाहेगी, जो जिसकी भी सरकार होगी, लेकिन मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आज भी चीजों को दिखाता है। परसों यदि सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ तो कल के अखबार में पूरा 4 पेज जो है उनके लिए रंगा हुआ था। उनको लोग छाप रहे थे कि वास्तविक स्थिति क्या है। मीडिया पर ये अटैक ये दिखाता है कांग्रेस की मानसिकता है। वो 1960 में नेहरू जी ने इमरजेंसी लगाया था, 1975 में इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाया, और ये जिस तरह का माहौल पैदा कर रहा है, राहुल गांधी एन केन प्रकारेण देश तोड़कर जो है सत्ता में आना चाहता है। सोरोस फाउंडेशन इसको पैसा दे रही है, इस्लामिक कंट्री इसको पैसा दे रही है, उसके आधार पर ये आंदोलन कर रहा है और मीडिया को पूरा बंद कर देना चाहता है। सर, कल्याण बनर्जी के हिसाब से हम गोदी मीडिया थे और इसलिए हम पर अटैक हुआ, वो ठीक था। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने ये तो कहा कि नहीं होना चाहिए था। पिछले 15 साल का टेलीग्राफ अखबार निकाल लीजिए कलकत्ता का, 2011 से लेके 2026 तक, और उसके बाद कल्याण बनर्जी से ये क्वेश्चन पूछिए कि गोदी मीडिया कौन। धन्यवाद। के बाहर बैठे थे, क्या कहेंगे? ये सरकार के काले कारनामों के खिलाफ हम लोग काला कपड़ा पहन करके आए और आज पूरा विपक्ष काला कपड़ा पहन के आया, क्योंकि इसी संसद के गेट पर जिस तरह से इस देश के छात्रों के साथ, मासूम नौनिहालों के साथ लाठियां बरसाई गई, उन पर बेटियों पर लाठियां बरसाई गई, इससे शर्मनाक लोकतंत्र के लिए कुछ हो नहीं सकता। ये सरकार के वो काले कारनामे हैं जिसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। कल राहुल गांधी जी ने जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर उनकी चौखट पे खड़े होकर के कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लीजिए, संसद में चर्चा कराइए, 5 डिमांड्स रखी, तो सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे आ गई। आखिर धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस देश के छात्रों से ज्यादा प्रिय है प्रधानमंत्री को? तभी धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए लाठियों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? इसके खिलाफ आज पूरा विपक्ष देश की संसद में काले कपड़े पहन के आया है। थैंक क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर? काले कपड़े पहनकर आज विरोध कर रहे हैं। कल जो है अत्याचार हुआ, परसों छात्रों पे जो अत्याचार हुआ, उसके बाद जो लगातार अत्याचार पुलिस कर रही है, और नीट पेपर को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, उस सबको लेके आज काले कपड़े पहन के प्रदर्शन है। सर पंजाब में लड़ाई लड़ेगी आपके खिलाफ, यहाँ राहुल गांधी के खिलाफ बोल रही है कि भाई राहुल गांधी ने सेट करके बैठ लिया वहाँ पर और छात्रों की लड़ाई को राहुल गांधी ने कमजोर कर दिया। देखिए, आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी होती है, हम तो कुछ न कहते हैं कि जो आंदोलन होता है वो आंदोलन कोई भी किसी आंदोलन के साथ जाना चाहिए, और जैसे उनकी पढ़ाई की गई तो यही एक ही आदमी नहीं है कि जो टूटने का वोट नहीं। मैं से पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारे बेटे हैं, जैसे वो बेटे थे जो, तो हम कहते हैं कि हम किसी और पार्टी को लेकर कमजोर बहुत अच्छा होता। कल जो दिल्ली पुलिस ने जैसे किया, शर्म आ रही है। ऐसा तो अमरीका में भी कभी नहीं किया। एलओपी को लीडर को कैसे धक्के मारे, तो वो भी जब रेज प्रॉब्लम थी तो जो महात्मा गांधी को और बड़े लीडर को धक्के नहीं मारते थे, रेस्पेक्ट अरेस्ट करते थे। सर, यूनिवर्सली अपोजिशन के ज़्यादातर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब गांधी स्टैच्यू के सामने ब्लैक कपड़े में खड़े होंगे, तो यहाँ आकर आम आदमी पार्टी के सांसद क्या खड़े हो जाएंगे, फिर बाहर निकलकर विरोध करना है? ये कौन सा गठबंधन है? गठबंधन तो किसी को समझ नहीं लगता कैसा है, क्या करते हैं, लेकिन उसके अपने आदमी सभी जिस पार्टी के साथ में से पंजाब से 6 आदमी पार्टी छोड़ जाते हैं, इससे बड़ी शर्मनाक अगर कोई आदमी काम करता है तो जो मेंबर पार्लियामेंट है उनके साथ खड़े। तो आपका आरोप है कि अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को केजरीवाल ने भेज दिया बीजेपी में। मुझे तो केजरीवाल साहब ज़्यादा बताएंगे कि क्यों क्या लोग गए, क्यों ऐसे आदमी को